Hello my dear students, welcome to ASIT'S Botany. Today I will teach you about the first chapter of class 12 botany, that is sexual reproduction in flowering plants. Okay, first chapter start kariba, sexual reproduction in flowering plants. What do you mean by sexual reproduction? That is the first question. What do you mean by sexual reproduction? Okay, sexual reproduction is the type of reproduction in which a parent give rise to its offspring, identical to themselves, that is parents जो भलिया हबो सही टाइप रो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हबो जेमति कि पेरेंट्स तर ह्यूमन हेबे ताहले ऑफस्प्रिंग ह्यूमन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करिवे. इफ पेरेंट्स आर एनिमल्स दैट इज टाइगर्स और लायंस they can produce offspring that is similar to themselves, tiger offsprings and lion offsprings. Okay, in sexual reproduction male and female gamete fertilize to produce diploid zygote, in which male and female gamete fertilize to form diploid zygote. Diploid means 2n because male and female gamete are haploid n, so production is diploid zygote hala 2n structure produce habo. In flowering plant, that is angiospermic plant, in angiospermic plant how sexual reproduction takes place. In angiospermic plants the main reproductive part is flower. Okay, reproductive part of angiospermic plants are flowers in which the male and female structures are placed. The male structure known as androecium and female structure known as gynoecium. Okay, we have to draw the structure of flower, which is the main part, that is reproductive part of a angiospermic plant. Okay, we have to draw a structure. तमें व्यस्त हेनी नोट पाइब आमर टेलीग्राम चैनल अच्छी टेलीग्राम चैनल लिंकटा मुझे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी. आमर टेलीग्राम चैनल ले चैप्टर रो फुल नोट अच्छी तुम्हें सेट्रु पाइब है. एवं मु स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर टा बुझापी तार गोटे डायग्राम करुच्ची देख. ओके, okay, that is the structure of a flower. The stalk or basal portion of a flower known as pedicel. Okay, the basal portion is known as pedicel. माने जोटा flower रो ओडिया रे हम ताको डेम्फो कहू हला. डेम्फो, that is called pedicel. The upper solen part after pedicel, the upper solen part of the pedicel known as thalamus or receptacle, that portion is known as calyx, that is sepal. That portion is known as sepal. That is a sepal. Individual unit is sepal. Aggregation of sepal is known as calyx. जदि गोटे सिंगल इंडिविजुअल यूनिट कथा कहवा एटा गोटे सेपाल बट आम तार आग्रिगेशन जदि बहुत गुड़ा सेपाल रही जिवे हम तो कौन कहवा कैलिक्स कहवा.
एटा कौन पाखुड़ा बा पेटाल पेटाल इंडिविजुअल यूनिट टा होची पेटाल बट तार एग्रीगेटेड यूनिट कौन कोरोला कोरोला होची पेटाल पेटाल होची इंडिविजुअल यूनिट तार एग्रीगेटेड यूनिट होची कोरोला एटी सेमती इंडिविजुअल यूनिट होची सेपाल एग्रीगेटेड यूनिट होची कैलिक्स एटा कौन एटा होची एंड्रोइशियम पार्ट एंड्रोइशियम रे हमर दीटा पार्ट अछि गोटे हला ऊपरटा होची आंथर आ गोटे पार्ट कौन दैट इज फिलामेंट ए दीटा पार्ट मिसे कि कौन हैला एंड्रोइशियम एंड्रोइशियम रो इंडिविजुअल यूनिट कौन स्टामेन हैला एंड्रोइशियम रे इंडिविजुअल यूनिट होची स्टामेन माने एटा गोटे स्टामेन एटा गोटे स्टामेन एटा गोटे स्टामेन एटा गोटे स्टामेन ताको दे हमें एग्रीगेटेड यूनिट कहवा दैट इज एंड्रोइशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होची एटा एटा देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो थरे तार सबटु अपर पोर्शन होची स्टिग्मा दैट स्टाक इज नोन एज स्टाइल दैट पोर्शन इज नोन एज ओवरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी that is the part of gynoecium that is female reproductive part the individual unit is carpel or pistil individual unit is carpel or pistil so that is the structure of a flower has 4 types of floral holes 4 types of floral holes that is calyx corolla androecium and gynoecium इंडिविजुअल यूनिट सेठी लिखि देछि हला तादरु एई दीटा होची नॉन एसेंशियल होल कहीं कि कहना ए दीटा ओनली कोन कोथ पई अछंती प्रोटेक्शन पई कि अछंती फ्लोरल पार्ट रो बट ए जो लास्ट दीटा अछि एंड्रोइशियम गाइनोसियम दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव होल्स essential or reproductive holes known as androecium and gynoecium okay एबे देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ आंथर स्ट्रक्चर को टाइप रो अछि स्ट्रक्चर ऑफ आंथर आमे आंथर स्ट्रक्चर टाको देखो एटा होची आंथर स्ट्रक्चर बा एंड्रोइशियम रो स्ट्रक्चर हमर आंथर पार्ट टा कोटा थिला एटा थिला आमे जद ताको ट्रांसवर्स सेक्शन ने कट करिबा ट्रांसवर्स सेक्शन माने जदी हम ताको गोटे होराइजेंटल सेक्शन ने कट करिबा ताले को टाइप रो स्ट्रक्चर आसीबो देखो এই টাইপ रो स्ट्रक्चर आसीबो जोथि कि आंथर वॉल लेयर अछि केतडा 4 टाइप्स ऑफ वॉल लेयर्स प्रेजेंट इनसाइड द आंथर स्ट्रक्चर देखो डायग्राम जो टाइप रो करछि ताको देखि करिवो भलो से नोट पई व्यस्त होबनी नोट हमर टेलीग्राम चैनल ASIT'S बॉटनी रो टेलीग्राम चैनल ओपन हेछि से टेलीग्राम चैनल ले चैप्टर नोट तुमको प्रोवाइड हे जिवो टेलीग्राम चैनल लिंक मोई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी हला देखो so the outer layer that is known as epidermis is the outer layer of anther wall second layer known as endothecium third layer known as middle layers why that is called middle layers because middle layers have 2 to 3 layers inside it okay that is called tapetum okay that is the 4 types of wall layers present in anther epidermis endothecium middle layers and tapetum out of the 4 layers upper 3 layers are meant for protection upper 3 layers are meant for protection and the last layer tapetum
That's function is to give nourishment to developing microspores or pollen grains. Okay, main function of tapetum to give nourishment to developing microspore or pollen grains, that is the nutritive layer. Okay, besides giving nourishment, that is also tapetum have two other functions. Two other functions are that provide lipid rich UV bodies for the formation of sporopollenin. Sporopollenin कौन पाई दरकार? Sporopollenin दरकार कौन पाई? pollen grain न outer layer जोटा अच्छी एक्साइन न कंपोजिशन होची स्पोरोपोलेनिन. से स्पोरोपोलेनिन टाको फॉर्मेशन करिया पई टापेटम हेल्प करे. टापेटम प्रोवाइड लिपिड रिच यूबिस बॉडीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन ऑफ exine layer of pollen grains. Okay, and secrete enzyme callase enzyme secrete करिवो. आउट एंजाइम secrete करिवो कौन? callase enzyme. काहे कि कहना जो pollen tetrad formation हुए, pollen tetrad टा को वाल द्वारा लगी की रही थाए, callose वाल द्वारा लगी की एमती थाए. से pollen tetrad जो callose वाल को डिग्रेड करिया पे जो एंजाइम टा दरकार सेटा होची callase enzyme. से callose वाल को डिग्रेड करिया पे जो callase enzyme दरकार ताको secrete किए करिवो? tapetum secrete करिवो. आ आ भितरे कोन अछि? स्पोरोजेनस सेल्स गुरा अछि. बुझि पाइलो? स्पोरोजेनस सेल जोगरा सब माइक्रोस्पोर मदर सेल हिसाब रे एक्ट करंती. ए स्पोरोजेनस सेल्स जोगरा माइक्रोस्पोर मदर सेल हिसाब रे एक्ट करंती. एबरा मन रखिबो हैला. एबे हम जानलु स्ट्रक्चर ऑफ आंथर जो थरे कि वॉल लेयर रहिला आ टापेटम रो फंक्शन देखिलु. टापेटम रो फंक्शन शॉर्ट नोट रे आसे त भलो से सेटा को देखिबो. आउ कोन रहिला ना हमर जो आंथर अछि दैट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरांजिएट स्ट्रक्चर. टेट्रास्पोरांजिएट स्ट्रक्चर काहे कि हमें टेट्रास्पोरांजिएट कहिबा? काहे कि ना 4 माइक्रोस्पोरांजिया आर प्रेजेंट. माइक्रोस्पोरांजिया और ताको हमें कौन कहिबा? pollen sacs. pollen sacs को जगह ना जहाँ भीतर pollen grain न प्रोड्यूस हुए और माइक्रोस्पोरांजिया कौन जहाँ भीतर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुए. सेटा होची 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरांजिया. एटा माइक्रोस्पोरांजिया, एटा गोटे, एटा गोटे, एटा गोटे. कहीं ना ता भीतर कौन स्पोरोजिनस टिश्यू अच्छी और स्पोरोजिनस सेल अच्छी. सेटा कौन माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करिवो. बुझी पाइलो? तेणु 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरांजिया कुहाइछि. आउ कोन मन रख ना गोटे आंथर डा सेटा होची बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. बाइलोब्ड माने 2 चैम्बर्स. हमर दीटा चैम्बर डिवाइड कराइछि और धर आमे एइटा होची गोटिए लोब, एपटा होची आउ गोटे लोब. जदि 2 चैम्बर डिवाइड कराइछि और 2 लोब रे डिवाइड कराइछि, ईच लोब रे केतेटा माइक्रोस्पोरांजिया अछंती? 2 माइक्रोस्पोरांजिया अछंती. सो 2 लोब्स रे केतेटा माइक्रोस्पोरांजिया हेबे? 4 माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट. ए 4 माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट आमे कहिलु टेट्रास्पोरांजिएट. काहे कहिलु? काहे कि ना जो 2 लोब रे डिवाइड कराइ जे आंथर स्ट्रक्चर टाको ईच लोब रे 2टा माइक्रोस्पोरांजिया. सो 2 लोब रे 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट. दैट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरांजिएट स्ट्रक्चर ऑफ आंथर. ओके, एबे देखिबा हमें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर जोटा कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट माने कोन ना मेल गैमेट रो फॉर्मेशन हबो कोथ्रु ना pollen grain नो मेल गैमेट रो फॉर्मेशन हबो. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होची डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट माने कोन? मेल गैमेट रो फॉर्मेशन हबो कोथ्रु? pollen grain नो. तार दीटा स्टेप अछि. मेन दीटा स्टेप रे इटा फॉर्मेशन हुए. फर्स्ट स्टेप होची माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सेकंड स्टेप होची माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. Genesis means formation.
Okay, genesis means formation, microsporogenesis means formation of microspore from microspore mother cell. जदि आम फर्स्ट स्टेपटा देखा microsporogenesis, that is formation of microspores from microspore mother cell. माइक्रोस्पोर मदर सेल रु माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हम केमिति हम ना प्रथमे मन रख स्पोरोजिनस टिश्यू जो गुरा अच्छी क्या भितर अच्छी स्पोरोजिनस टिश्यू टैपेटम लेयर भितर आम कहलु टैपेटम लेयर भितर डायग्राम कलु स्पोरोजिनस टिश्यू अच्छी से स्पोरोजिनस टिश्यू कौन कर दीज आर कन्स्टांटली डिवाइडिंग जदि सेगुरा कन्स्टांटली डिवाइडिंग हेबे ताले कौन हम constantly dividing हेले their number increases and the growth of anther takes place. बुझिला स्पोरोजिनस टिश्यू यदि कन्स्टांटली डिवाइडिंग हेबे तांको नंबर कौन हम इनक्रीज हम आउ ग्रोथ ऑफ आंथर हम आंथर ग्रोथ हम कहीं आंथर भितर से गुरा अच्छी जदि स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड हो चलला सेटा कौन इनक्रीज करिवो ता नंबर टू विथ द ग्रोथ ऑफ आंथर आंथर ग्रोथ हम तापर कौन है से जो डिवाइडिंग है फॉर्मेशन कौन है स्पोरोजिनस सेल्स से जो स्पोरोजिनस सेल गुरा बहुत गुड़ा फॉर्मेशन है each sporogenous cell act as microspore mother cell बुझी पाइल माइक्रोस्पोर मदर सेल हिसाब से कौ गुरा एक्ट कला जो गुरा कौन नंबर इनक्रीज है जो सेल गुरा फॉर्मेशन है स्पोरोजिनस सेल दे एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन हम मेयोसिस हम मेयोसिस हेले कौन हम गोटे पेरेंट रु चार्टा डटर फॉर्मेशन हेबे जदि स्पोरोजिनस सेल बा माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोसिस हैला 4 पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस हेबे से 4 पोलेन ग्रेन को आम कौन कहवा दैट इज नोन एज पोलेन टेट्राड पोलेन टेट्राड माने 4 टाइप्स ऑफ पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस हैला बुझी पाइल से जो पोलेन टेट्राड फॉर्मेशन हैला पोलेन टेट्राड अरेंजमेंट डाइकोट प्लांट रे अलगा थाए मोनोकोट प्लांट रे अलगा थाए डाइकोट प्लांट रे तार अरेंजमेंट को टाइप रे हबो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हबो आउ मोनोकोट प्लांट रे तार अरेंजमेंट को टाइप रे हबो ना आइसो बाइलैटरल अरेंजमेंट हबो केमिति डाइकोट प्लांट रे जो टेट्राहेड्रल टा सेटा केमिति हबो सेटा एई टाइप रे हबो सेटा को हमें 3D स्ट्रक्चर रे देखिबा देखो एइटा हला चारटा पोलेन गेन फॉर्मेशन हला बा पोलेन टेट्राड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टा ए टाइप रे हबो 3D डायग्राम टा जोटा कि एइटा गोटे तीनटा हला आ गोटे सेपटे अछि सो आमे धर गोटे 3D बॉल टा को देखिया को चाहिबा गोटे पट पछपटे लुचि जीवो ना तेनु से अनुसार एटा 3D स्ट्रक्चर देखिया गले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टा ए टाइप रे हबो एपटे तीनटा शो करछि आ गोटे सेपट को अछि सो डाइकोट रे एटा मोनोकोट रे केमति आइसो बाइलैटरल हबो ना एइटा आइसो बाइलैटरल माने सेम सबु स्ट्रक्चर आसीबो एटा होछि आइसो बाइलैटरल जोटा मोनोकोट प्लांट पई पोलेन टेट्राड अरेंजमेंट पोलेन टेट्राड जदि एई टाइप अरेंजमेंट हबो मु कोन कहितली पोलेन ग्रेन ना वाल टा को वाल ले लागि के अछि पोलेन ग्रेन टा जो पोलेन टेट्राड फॉर्मेशन हेछि को वाल ले लागि के अछि जो वाल टा कोन कहबा दैट इज कैलोस वाल ए कैलोस वाल डिग्रेडेशन पई टापेटम सिक्रेट करे कोन कैलेस एंजाइम सिक्रीशन करिवो तेनो एठी कोन हेगला पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन हेगला और माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हेगला सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस टा सरला एबे सेकंड स्टेप टा करिबा जोटा कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जो पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन हला सेइथरु मेल गैमेट रो फॉर्मेशन हबो बट आमे ता पूर्वरु देखिबा पोलेन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन स्ट्रक्चर को टाइप रो हबो ना देखो पोलेन ग्रेन स्ट्रक्चर हबो ए टाइप रो पोलेन ग्रेन हैव 2 wall layers outer wall layer known as exine inner wall layer known as intine and that is pollen nucleus that is germ pore okay exine wall outer wall made up of
sporopollenin. You have to memorize that exine wall of pollen grain made up of sporopollenin. Intine wall made up of pectin and cellulose. So that is called pectocellulosic in nature. Intine wall. Pollen nucleus, germ pore. Germ pore where exine is absent. जो जगह एक्साइन एब्सेंट अच्छी सेठी कौन से पोर्शन टा कौन कहवा जर्म पोर जो पट देकी हमर पोलन ट्यूब टा जनरेट हबो ता माने पोलन ट्यूब टा मोदे पचारिबी को वाल बाहर छि ताल तुम आंसर कोन दबो दैट इज पोलन ट्यूब जनरेटेड फ्रॉम इंटाइन वॉल ऑफ पोलन ग्रेन आ गोटे कथा मन रख एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन रे फॉर्मेशन हेची दैट इज बायोलॉजिकली रेजिस्टेंट सब्सटेंस बायोलॉजिकली रेजिस्टेंस आउ कौन सेटा रेजिस्टेंट सब्सटेंस बेली दैट प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम हाई एसिडिटी हाई अल्कालिनिटी एंड हाई टेम्परेचर पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन दिए आउ कौन करिवो ना फॉर द बिकॉज ऑफ presence of sporopollenin the pollens can be stored as fossil जीवाश्म बा fossil form रे pollen grain को माटी तले भी स्टोर करा जाय परिबो because of presence of sporopollenin because that is a biologically resistant substance एडा मन रखियो हला आउ pollen nucleus जे pollen nucleus रो मेन काम कोथरे ए माइक्रो गामेटोजेनेसिस प्रोसेस रे आसीबो देखो एबे देखिबा माइक्रो गामेटोजेनेसिस प्रोसेस माइक्रो गामेटोजेनेसिस रे कौन होची देखो माइक्रो गामेटोजेनेसिस रे कौन हबो ना जो पोलन न्यूक्लियस अछि डायग्राम एकत्र कर दोची सेटा ये करी कि चलो ए पोलन न्यूक्लियस रे कौन हबो माइटोसिस हे जिवो पोलन न्यूक्लियस रे माइटोसिस हेले केतेटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हेबे दीटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हेबे मेयोसिस हेले चारटा ही थांदा बट माइटोसिस हेले केतेटा न्यूक्लियस दीटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हेबे ओनली दीटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हे गेला बट साइटोप्लाज्म डिवाइड हेनी ता पर स्टेप रे कोन हबो साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवीजन हबो अनइक्वल डिवीजन हैला माने गोटे सेल बड़ आसीबो आ गोटे सेल छोटो आसीबो गोटे सेल बड़ आसीला माने एटा हैला बड़ सेलटा और लार्जर सेल दैट इज स्मॉलर सेल ए जो लार्जर सेल फॉर्मेशन हैला दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल that is generative cell the smaller cell known as generative cell larger cell known as vegetative cell okay that is vegetative nucleus और तार आ गोटे ना कोन ट्यूब न्यूक्लियस आ ना कोन that is generative nucleus okay एठी कोन हबो ता पर स्टेप रे वेजिटेटिव न्यूक्लियस टे सेमती रही जिवो बट जेनेटिव सेल जो न्यूक्लियस अछि सेटा कोन हबो पुणी आउथरे माइटोटिक डिवीजन करिवो यदि पुणी आउथरे माइटोटिक डिवीजन कला ताले फॉर्मेशन कोन करिवो पोलन ट्यूब जो फॉर्मेशन हला तारी भितरे दीटा मेल गैमेट आसी रहिबे मेल गैमेट कोटू फॉर्मेशन हैला जेनेटिव सेल न्यूक्लियस रु मेल गैमेट दीटा फॉर्मेशन हैला काना जेनेटिव सेल अंडरगो माइटोसिस दैट फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स ओके आ जो ट्यूब न्यूक्लियस ता थिला एटा संते आसी रही गला वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस एटा सेमती आसी तळे रही गला आ एटा कोन दैट इज कैलोस प्लग एठी गोटे फॉर्मेशन कोन हैला कैलोस प्लग इज मींट फॉर द डोर दैट द फॉर्मेशन ऑफ pollen tube that do not revert back to the pollen structure that is called callus plug हो जे डोर लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि pollen tube रे जहाँ भी कंपोजिशन अच्छी सेटा पुणी आउ थे pollen tube रे स्ट्रक्चर भीतर को एंटर करि परिबो नाही से जो दैट इज द डोर लाइक स्ट्रक्चर आमे कोन कहलु माइक्रो गामेटोजेनेसिस माने गामेट रो फॉर्मेशन हबो कोथुर फॉर्मेशन हबो pollen grain नु गामेट रो फॉर्मेशन हे गेला दीटा मेल गामेट रो फॉर्मेशन हे गेला तन दैट इज कॉल्ड माइक्रो गामेटोजेनेसिस प्रोसेस ओके एटा सरला डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एबे हमें देखिबा गाइनोसियम रो स्ट्रक्चर और सेटा कोन हमरो पिस्टिल
और गाइनोसियम रो स्ट्रक्चर देखो गाइनोसियम रो स्ट्रक्चर कौन थिला एटा हमर स्ट्रक्चर थिला एटा कौन थिला स्टिग्मा स्टाइल आउ ए पार्टा कौन थिला ओभारी ओभारी भितरे डिफरेंट चैम्बर अछि से चैम्बर भितरे ओव्यूल गुरा फॉर्मेशन हेचंती कौन फॉर्मेशन हेचंती ओभारी भितरे ओव्यूल फॉर्मेशन हेची आ चैम्बर गुरा को कौन कहबा लोक्यूल्स द चैम्बर ऑफ ओभारी नोन एज लोक्यूल्स जेमते एठी चारटा चैम्बर डिवाइड हेची ता माने चारटा लोक्यूल एटा फॉर्मेशन हेची ता भितरे कौन अछि ओव्यूल गुरा अछि एबे देखिबा ओव्यूल स्ट्रक्चर देखो ए टाइप रो जोटा कि मोस्ट कॉमन टाइप रो ओव्यूल स्ट्रक्चर हम एबे करछु देखो ओव्यूलटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे मोस्ट कॉमन टाइप को टाइप सॉरी रहइबो देखो एटा होची स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल दैट इज कॉल्ड अनाट्रोपोस टाइप ऑफ ओव्यूल ए जो ओव्यूल स्ट्रक्चर टा कोन कहबा अनाट्रोपोस टाइप इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट दैट इज प्लासेंटा दैट इज फ्यूनिकल दैट इज हाइलम the ovule has two type of end that is chalazal end and that is micropylar end or that is micropyle that is chalaza and that is embryo sac. These are the integuments, the wall layers present inside the ovule that is called wall layers. Okay, that is integuments. That is called bitegmic ovule because why that is called bitegmic because two integuments present that is called bitegmic. Inside embryo sac the chalazal end has three types of cells known as antipodals or antipodal cells. The central cell comprises of two nucleus that is called polar nuclei and the micropylar end have three cells that is called one egg cell and two synergids. Okay, that is called the embryo sac. Okay, around the embryo sac a parenchymatous tissue is present. The parenchymatous tissue is nucellus. Sorry, around the embryo sac the parenchymatous tissue is present that is nucellus. That is the structure of a typical ovule. Okay, let us discuss the second type of long question that is development of female gametophyte or embryo sac. embryo sac जोटा formation हैला सेटा केमिति formation होउची सेटा हमें देखिबा बे देखो second long question होउची development of female gametophyte हैला फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक रो फॉर्मेशन केमती होउची एटा भी दीटा स्टेप रे हुए वन इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड अनदर इज मेगा गामेटोजेनेसिस हैला गोटे हला मेगास्पोरोजेनेसिस गोटे मेगा गामेटोजेनेसिस एठी कोन हबो मेगास्पोर रो फॉर्मेशन हबो मेगास्पोरोजेनेसिस रे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगा गामेटोजेनेसिस रे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गामेट टेक्स प्लेस.
ओके मेगास्पोर रो फॉर्मेशन को टाइप रे हबो देखो फर्स्ट सब एपिडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस सब एपिडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस act as मेगास्पोर मदर सेल माने ये कौन कहगला ना आमर जो न्यूसेलस गोटे सब एपिडर्मल सेल अच्छी न्यूसेलसटा कौटी अच्छी अराउंड एम्ब्रियो सैक अच्छी तार गोटे सब एपिडर्मल सेल माने एपिडर्मिस होती सब आउटर लेयर तार बिलो लेयरटा दैट इज सब एपिडर्मल सेल गोटे न्यूसेलस गोटे सेल आक्ट कौन करिवो मेगास्पोर मदर सेल हिसाब रे ताकू आमे कौन कहिबा आर्चिस्पोरियल सेल कहिबा और आर्चिस्पोरियल इनिशियल कहिबा बुझ पाइलो से आर्चिस्पोरियल इनिशियल ले कौन हबो मेयोसिस हबो यदि मेयोसिस हेबे 4 मेगास्पोर प्रोडक्शन हेबे जो 4 मेगास्पोर प्रोडक्शन हैला ऊपरे एटा को टाइप रो मेगास्पोर फॉर्मेशन हैला लिनियर मैनर रे फॉर्मेशन हैला लिनियर माने सीधा सीधा फॉर्मेशन हेची 4टा मेगास्पोर फॉर्मेशन हैला ऊपर एंड टाको आमे कहबा माइक्रोपाइल तळ एंड टाको कहबा चलाजा ओके आमर ऊपर एंड आडकू बा माइक्रोपाइलर एंड आडकू जो 3टा मेगास्पोर अछि दैट डीजेनेरेटेड माने कौन हो नष्ट हो कोगुरा ऊपर जो 3टा मेगास्पोर अच्छी माइक्रोपाइलर एंड आड़कू सब लास्ट आड़कू जो मेगास्पोरटा अच्छी दैट इज चालाजाल मेगास्पोर से चालाजाल मेगास्पोरटा कौन फंक्शनल मेगास्पोर ये लास्ट आड़कू जो मेगास्पोर अच्छी फंक्शनल मेगास्पोर आमको मिलला दैट इज चालाजाल मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर मिलला से फंक्शनल मेगास्पोर ही सेकंड स्टेपटा करिवो मेगा गामेटोजेनेसिस तान फर्स्ट स्टेपटा बुझिलो ए सब एपिडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल बा न्यूसेलस रो जो सब एपिडर्मल सेल अछि ता धरु मेगास्पोर मदर सेल हिसाब रे गोटे सेल एक्ट करिवो से सेलटा को कहबा आर्चिस्पोरियल सेल सेही सेल ले मेयोसिस हबो मेयोसिस हेले 4टा मेगास्पोर प्रोडक्शन हेबे को मैनर रे प्रोडक्शन हेबे ना लिनियर मैनर रे प्रोडक्शन हेबे से लिनियर मैनर आड़कू जो माइक्रोपाइलर एंड आड़कू जो 3टा मेगास्पोर थबो दैट इज डीजेनेरेटेड बा नष्ट होई जिवो लास्ट को जो चलाजाल एंड आड़कू जो मेगास्पोर रहिबो सेटा हबो फंक्शनल से फंक्शनल मेगास्पोर कोन करिवो मेगा गामेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू करिवो एठी देखो फंक्शनल मेगास्पोर रे कोन हबो फंक्शनल मेगास्पोर रे कोन हबो सेकंड स्टेप रे हबो फंक्शनल मेगास्पोर जोटा थिला हमरो ता धरे कोन हबो 3 थर माइटोसिस हबो 3 टाइप्स ऑफ माइटोसिस प्रथमे माइटोसिस 1 हेले गोटे रु केतरा 2टा फॉर्मेशन हबो दीपटे 2टा तापरे होची माइटोसिस 2 जदि माइटोसिस 2 हबो से 2टा रु कोन हबो ऊपरे आउ 2टा प्रोडक्शन हेबे माने टोटल 4टा प्रोडक्शन हेले 1 रु 2 हैला 1 रु 2 हैला तापरे माइटोसिस 3 हैला परे कोन हबो ऊपरे से 2टा रु कोन हे गेले 4टा हे गेले तले 2टा रु कोन हे गेले 4टा हे गेले ता माने तापरे कोन हबो माइटोसिस सरी गेला 3 थर माइटोसिस हे गेला ऊपरु गोटे सेंटर को आसीबो तळु गोटे सेंटर को आसीबो ता माने कोन हबो ऊपरे केतरा न्यूक्लियस रही गेला 3टा न्यूक्लियस रही गेला सेंटर रे 2टा आसीला आ तळे केतरा रहिला 3टा रहिला ताहाले जेते बेले सेल वॉल फॉर्मेशन हबो मान न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाई छी जरा साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन हबो ऊपर जो 3टा न्यूक्लियस अछंती 3टा को ए टाइप रो रही गेले 3टा सेल प्रोडक्शन कले एठी सेंट्रल सेल रहिला ता भितरे 2टा न्यूक्लियस रहिला एठी कोन हला जो 3टा अछंती 2टा साइनर्जिड हे गेले आ गोटे कोन हे गेले एग सेल हे गेले ए जो 3टा रहिला एटा कोन कहबा एंटीपोडल्स एटा को एंड होची एटा चलाजाल एंड होची एपटा कोन होची माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइल एटा कोन सेंट्रल सेल 2टा न्यूक्लियस को कोन कहबा पोलार न्यूक्ली और ताको कोन कहबा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऊपर जोटा रहउची एग सेल तळे जो 2टा रहउची दैट इज साइनर्जिड्स ता माने एग सेल ऊपर रहिला तळे 2टा साइनर्जिड रहिला एग और साइनर्जिड मिसिले हम ता कोन कहबा एग apparatus कहबा
बुझिपाइल एटा कौन आम गोटे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन हो गला ये जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन है तार केतटा सेल अच्छी केतटा न्यूक्लियस अच्छी 7टा सेल अच्छी आउ 8टा न्यूक्लियस अच्छी केमिति 7टा सेल ना 1 2 3 4 5 6 7 7टा सेल न्यूक्लियस 8टा केमती होउची कने सेंट्रल सेल भीतर 2टा न्यूक्लियस अच्छी सो दैट इज न्यूक्लियस आ गोटे ऐड हो जाउची 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा न्यूक्लियस फॉर्मेशन होउची से 7टा सेल 8टा न्यूक्लियस को आमे कोन कहबा दैट इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक एटा फॉर्मेशन हला सो हमर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक एटी कौन है सरीला ये एम्ब्रियो सैक भितर मन रख आमर जो एटा लिभौची देख एम्ब्रियो सैक भितर साइनर्जिड भितर गोटे स्ट्रक्चर अच्छी सेटा कौन कहबा फिलीफॉर्म apparatus ये जो एम्ब्रियो सैक आम बड़ करिबा एंटीपोडाल 3टा रहिला सेंट्रल सेल भितर 2टा न्यूक्लियस एठी 2टा साइनर्जिड गोटे एक्स सेल आ भितर गोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अच्छी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कौन कहबा दैट इज फिलीफॉर्म apparatus फिलीफॉर्म apparatus रो काम कौन दैट गाइड्स दी पोलन ट्यूब को गाइड करिवो काना पोलन ट्यूब एक सेल संगे आसी फ्यूज करिवो और फर्टिलाइजेशन करिया पई पोलन ट्यूब को गाइड करिके किए नै कि आसीबो फिलीफॉर्म apparatus that secrete a chemical attractant that attract the pollen tube to fertilize to the egg okay that is आमे सेटा पढिबा कोथरे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रे पढिबा so that is the first part of sexual reproduction in flowering plant chapter ये चैप्टर जहाँ भी पढ़ाला आपको भल से बुझीबो आ नोट पाई व्यस्त होबनी नोट टेलीग्राम चैनल ले हमर उपलब्ध अच्छी नोट से पीडीएफ तुम डाउनलोड करि परिबो हमर सब टेलीग्राम चैनल ले नोट सब छड़ा होउची ता संगे व्हाट्सएप चैनल भी अच्छी व्हाट्सएप चैनल लिंक भी दे देबी व्हाट्सएप चैनल ले डेली बेसिस रे एमसीक्यू प्रैक्टिस करा होउची सेटा CHSE CBSE बोर्ड पाई आ ता संगे नीट OUT एंट्रेंस पाई भी प्रैक्टिस करा होउची तनु व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल बोथ को जाई जॉइन कर साइला परे तादरु क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट कलेक्ट करो ओके थैंक यू आउ तम सांग मान भी कह चैनल सब्सक्राइब करिया पई सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब थैंक यू।